from India and abroad, students of science, friends, to begin with, I wish you all a happy 2020. May this year be marked by prosperity in your lives and productivity in your labs. I'm particularly happy that one of my first programs in the start of a new year and new decade is linked to science, technology, and innovation. This program is happening in Bengaluru, a city associated with science and innovation. The last time I had come to Bengaluru was when the eyes of the nation were set on Chandrayaan-2. That time, the manner in which our nation celebrated science, our space program, and the strengths of our scientists will always be a part of my memory. Friends, Bengaluru, the city of gardens, is now a wonderful field for startups. The world is coming to innovate here. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ऐसा इकोसिस्टम इस शहर ने विकसित किया है जिससे जुड़ना हर युवा साइंटिस्ट, हर इनोवेटर, हर इंजीनियर का सपना होता है। लेकिन इस सपने का आधार क्या सिर्फ अपनी प्रगति है, अपना कैरियर है? जी नहीं, ये सपना जुड़ा हुआ है देश के लिए कुछ दिखाने की भावना से, अपनी अचीवमेंट को देश की अचीवमेंट बनाने से। एंड हेंस व्हेन वी स्टार्ट ईयर 2020 with positivity and optimism of science and technology driven development, we take one more step in fulfilling our dream. Friends, I have been told that India has gone up to third position globally in the number of peer-reviewed science and engineering publications. It is also growing at a rate of about 10% compared to around 4%, which is the global average. I'm also happy to learn that India's ranking has improved in the Innovation Index to 52. Our programs have created more technology business indicators, incubators in the last 5 years than in the previous 50 years. I congratulate our scientists for these achievements. Friends, the growth story of India depends on its success in the science and technology sector. There is a need to transform the landscape of Indian science, technology, and innovation. My motto for the young scientists is, this country is innovate, patent, produce, and prosper. These 4 steps will lead
our country towards faster development. If we innovate, we will patent, and that in turn, we will make our production smoother. And when we take these products to the people of our country, I'm sure they will prosper. Innovation for the people and by the people is the direction of our new India. Friends, न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लॉजिकल टेम्परामेंट भी, ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास को हम नई दिशा दे सकें। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि भारत के समाज को जोड़ने का काम अवसरों की समानता लाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। अब जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास ने भारत में ही बन रहे सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने एक बहुत बड़ी प्रिविलेज को खत्म किया। इससे आज सामान्य से सामान्य नागरिक को भी विश्वास हुआ है कि वो अलग नहीं, वो भी सीधा सरकार से कनेक्टेड है, उसकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंच रही है। ऐसे ही परिवर्तनों को हमें और प्रोत्साहित करना है, मजबूत करना है। साथियों, इस बार आपने रूरल डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा रखी है, इसलिए मैं इसी क्षेत्र की थोड़ा और विस्तार से बात करूंगा। बीते 5 वर्षों में रूरल डेवलपमेंट को देश के सामान्य मानवी ने महसूस किया है, अनुभव किया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं जो आज इफेक्टिव डिलीवरी के लिए सराही जा रही है, उनके पीछे की ताकत अगर कोई है तो वो है टेक्नोलॉजी और गुड इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए हमारी प्रतिबद्धता। साथियों, आज देश में गवर्नेंस के लिए जितने बड़े पैमाने पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। कल ही हमारी सरकार ने, मेरा तुमकुर में कार्यक्रम था, देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये सब कैसे हुआ? ये संभव कैसे होता है? क्योंकि आधार एनेबल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम आसान होता है। साथियों, अगर देश के हर गांव तक, गरीब परिवार तक शौचालय पहुंचा है, बिजली पहुंची है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी है जिसके कारण सरकार उन 8 करोड़ गरीब बहनों की पहचान कर पाई जिनका जीवन लकड़ी के धुएं में बर्बाद हो रहा था। टेक्नोलॉजी के उपयोग से लाभार्थी की पहचान तो हुई ही, साथ ही नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां और कितने बनने हैं, ये भी हम बहुत ही कम समय में तय कर पाए। आज गांव में सड़कें समय पर पूरी हो रही हैं। गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मकान अगर समय पर तैयार हो पाए हैं, तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी की ताकत है। जियो टैगिंग और डेटा साइंस का उपयोग होने से
अब प्रोजेक्ट्स की गति और तेज हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था से योजना और लाभार्थी के बीच का गैप अब खत्म होने लगा है। समय पर काम पूरा होने से कॉस्ट ओवररन और अधूरे प्रोजेक्ट को ही पास करने की जो शिकायतें आती थी वो भी अब खत्म हो रही है। फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर एफर्ट्स टू एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग साइंस and effectively using information technology to reduce red tape. Today, farmers are able to sell their products directly to the market without being at the mercy of the middleman. Digital technology, e-commerce, internet banking, and mobile banking services are assisting rural population significantly. Today, farmers are getting the required information about the weather and forecasts at their fingertips through many e-governance initiatives. साथियों, भारत के विकास में, विशेष तौर पर ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को हमें और व्यापक बनाना है। आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आप सभी को ये भी जानकारी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान की ताकत भी टेक्नोलॉजी है। अब यह आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करें। एक प्रकार से वाटर गवर्नेंस आपके लिए एक नया फ्रंटियर है। घर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएं, इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तैयार करना है। हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पोषण से भी भरपूर हो और पानी का उपयोग कम करें। देश भर में जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उस डेटा का उपयोग रोजाना की खेतीबाड़ी के काम में कैसे हो, इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। सबसे अहम ये कि सप्लाई चेन में जो नुकसान हमारे किसानों को होता है, उससे बचाने के लिए तकनीकी समाधान बहुत ही जरूरी है। साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था की एक और अहम कड़ी है हमारे लघु और मध्यम उद्योग, यानी एमएसएमई। बदलते हुए समय में इनकी मजबूती भी आप सभी साथियों से जुड़ी हुई है। अब जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की ही बात लीजिए। देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति पाने का संकल्प लिया है ताकि अपने पर्यावरण को, हमारे पशुओं, हमारी मछलियों को, हमारी मिट्टी को हम बचा सकें। लेकिन प्लास्टिक का सस्ता और टिकाऊ और कुछ नया विकल्प तो आपको खोजना होगा। मेटल हो, मिट्टी हो या फिर फाइबर, प्लास्टिक का विकल्प आपकी प्रयोगशाला से ही निकलेगा। प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मेटल को निकालने और इसके रीयूज को लेकर भी हमें नई तकनीक, नए समाधान की जरूरत है। आप जो समाधान देंगे वो समाधान हमारे ये लघु उद्योग, हमारे मिट्टी के कलाकार, लकड़ी के कलाकार बाजार में उतार पाएंगे। इससे पर्यावरण भी बचेगा और हमारे लघु उद्योगों का विकास भी होगा। साथियों, गांवों में ग्रीन, सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए समर्पित स्टार्टअप्स के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। फसलों के अवशेष और घरों से निकलने वाला कचरा भी प्रदूषण और गंदगी को लेकर चुनौती पैदा कर रहा है। इस वेस्ट को भी हमें वेल्थ में बदलने के लिए तेजी से कोशिश करनी होगी। हमारा प्रयास है कि साल 2022 तक हम कच्चे तेल के आयात को कम से कम 10% कम कर सकें। लिहाजा बायोफ्यूल, इथेनॉल निर्माण के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे में इंडस्ट्री आधारित रिसर्च को हमें अधिक प्रोत्साहन देगा। हर स्टेक होल्डर को के उसके बीच में संवाद को हमें विकसित करना होगा। याद रखिए, आपका यही योगदान भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, there is a need for revolution in technology assisting agriculture practices. Can we find farmer-centric solutions to the problems of stock burning, for instance? Can we also redesign our brick kilns for reduced emissions and greater energy efficiency? We need to find better and faster solutions to the problem of clean drinking water supplies around the country. How do we prevent effluent and discharge from industries from destroying our soil and our groundwater tables for years to come? Friends, another important point I wish to make is the significance of the Make in India in medical devices to bring the fruits of advances in diagnostic to our people. Mahatma Gandhi once said, "It is health that is the real wealth and not piece of gold and silver." To promote well-being, we should not only practice some of the tested traditional wisdom, but also continuously enlarge its scope by introducing the modern tools and concepts of contemporary biomedical research. Our vision should be to protect people from the threats of dangerous communicable diseases like Nipah, Ebola. We must work overtime to fulfill the promise to eradicate TB by 2025. Globally, India is the leader in the supply of vaccines. We aim to develop India as a world-class $100 billion biomanufacturing hub by 2024. This will happen with right policy initiatives and support to innovative research, human resource development, and enterprise. Friends, India must also develop a long-term roadmap for sustainable and environment-friendly transportation and energy storage options. The latter becomes increasingly significant for grid management
as we expand our renewable energy supply. These require developing the new battery types which are based on earth-abundant, environment-benign materials which are affordable and suitable for tropical climates. Friends, the economic and social benefits of accurate weather and climate forecasting are immense. There have been considerable improvements in weather forecasts and warning services, especially in case of tropical cyclones. Our success in space exploration should now be mirrored in the new frontier of the deep sea.